continuing the discussion of the preface of Nectar of Devotion book. So yesterday, as a part of the preface, we saw the life of Rupa Goswami. कल हमने रूप गोस्वामी के जीवन के बारे में पढ़ा और किस स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्ति रसामृत सिंधु यह ग्रंथ लिखने का आदेश दिया था, वो भी हमने देखा कि उन्होंने उनको पूर्ण कृपा अपना प्रदान किया था चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पाद को, और उस कृपा के कारण ही श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, कि उन कृपा के कारण ही वो जो भी उनके अभिष्ट थे चैतन्य महाप्रभु की, तो वो सारे इस पृथ्वी तल पे स्थापन कर पाए. He could establish whatever Chaitanya Mahaprabhu wanted, because Chaitanya Mahaprabhu had bestowed full mercy upon Srila Rupa Goswami. That's what we saw. So there have been many commentaries that also we discussed by various acharyas. Gaudiya acharyas, they have given various commentaries on this very specific topic of Bhakti Rasamrita Sindhu, which discusses Bhakti in terms of rasa. This is the very first time, एक बहुत पहले बार ऐसे हुआ है कि किसी ने somebody has tried to explain bhakti from the point of view of रस शास्त्र. भरत मुनि ने रस शास्त्र दिया है. नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ये 5 मुख्य और 7 गौण रसों का वर्णन करते हैं. तो उस रसों के अनुसार भक्ति का वर्णन करने का प्रयास पहले बार गोस्वामी पाद के द्वारा हुआ है. इसके पहले तो अलग अलग acharyas, they have written various commentaries or definitions of bhakti, like Narada Bhakti Sutra is there. The bhakti is defined in various ways in Narada Bhakti Sutra, but it is not defined in terms of primary and secondary rasas. This is the first time, पहले बार ऐसा हुआ है कि रूप गोस्वामी द्वारा ये पहले बार 5 मुख्य और गौण रसों में भक्ति को एक्सप्लेन किया गया है, और जिन रसों में भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ में. ओके, तो डिटेल में डिस्कशन करो. In detail it is explained in these 5 rasas and 7 secondary rasas, and the further subtle science of various bhavas are mentioned, emotions, sanchari bhav, vyabhichari bhav, ये सारा आगे आएगा नेक्टर ऑफ डिवोशन में, जो हम पढ़ेंगे. In short we'll study that also. Yeah, तो आज हम ये प्रीफेस अभी और आगे पढ़ेंगे. तो प्रो आप थोड़ा स्क्रीन शेयर करेंगे आपका प्रीफेस वाला, स्क्रीन से पढ़ेंगे. कल हमने कुछ उद्देश्य भी देखे थे भक्ति रसामृत सिंधु के, 6 उद्देश्य देखे थे स्पेसिफिकली कि क्यों ये भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ दिया गया है. Today we will discuss further more. Now from preface we'll start discussing. So please share your screen, the preface part. प्रभु थोड़ा रिकैप कर देना प्लीज, 2 मिनट का. Yesterday same, right? We did recap that we discussed life of Srila Rupa Goswami Pad and under what circumstances Chaitanya Mahaprabhu asked him to compose this literature. Now we also studied what are the purposes. You remember any of the purposes, or what are the lessons, or what we can derive from Bhakti Rasamrita Sindhu? क्या डिस्कस किया था हमने? हम गोस्वामी के लेवल को कैसे पा सकते हैं? पहला था कि how to rise to the level of Goswami. Second क्या था? भक्ति रस और सांसारिक रस में क्या अंतर है? अंतर क्या है? भक्ति रस क्या, सांसारिक रस क्या, आज हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. तीसरा क्या देखा था? Hare Krishna. Yes. We discussed that Bhakti Rasamrita Sindhu is known as Abhidheya Shastra. Yeah, that also we discussed. And right now we're discussing this purposes. What lessons or purposes we can learn from Bhakti Rasamrita Sindhu. What is the third? What is the third? हरे कृष्णा प्रभु जी की भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्ति करते हुए भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं? Yes, उसका व्यवहारिक मार्ग, the practical way of executing bhakti while staying in this material world. Yes, what is the fourth? 5 रसों का आस्वादन कैसे कर सकते हैं? Yes, 5 रसों में निहित जो वास्तविक प्रेम है उसका उद्दीपन कैसे करना है, ये भी है ना इसका उद्देश्य. और क्या उद्देश्य है इसका 5वां? How to spread love to all living. Yes, to learn to love every living being. व्यवहारिक रूप से हर एक जीवात्मा से कैसे प्रेम किया जाए वो सीखना. और छठा? How to nourish भक्ति, भक्ति का पालन पोषण कैसे करना है, कैसे करें? Yes, so कृष्ण भक्ति के पालन पोषण कैसे करना है. कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में जब आती है तो how we can nourish that creeper of devotion so that we grow in our bhakti. That also we saw as one of the purposes of this book. Okay, so we'll read further now.
अब थोड़ा ऊपर ये जाएंगे कौन से चैप्टर का है प्रभु जी? फर्स्ट ये चैप्टर प्रीफेस में आता है ये? प्रीफेस Star through NOD. क्या था प्रभु जी? सॉरी, मुझे समझ में नहीं एक आया। मिनट, अभी आप थोड़ा सा म्यूट रखिएगा सब डिवोटीज लोग। आई थिंक होस्ट कैन म्यूट। सब म्यूट कीजिए कृपया। एवरीबॉडी शुड म्यूट देयर माइक्स नाउ प्लीज। जब पूछा गया तो आप कृपया ऑन कीजिएगा। We are therefore generally known as Rupanugas, or followers of footsteps of Srila Rupa Goswami Prabhupada. We are following the footsteps of Srila Rupa Goswami Prabhupada. The present Krishna conscious movement is also based on the authority of Rupa Goswami Prabhupada. तो जो भी हम फॉलो कर रहे हैं उसका प्रमाण रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए? भक्ति रसामृत सिंधु में रहना चाहिए, भक्ति और उपदेशामृत ऐसे ग्रंथों में उनका प्रमाण रहना चाहिए। Whatever you are following in bhakti, it should be found in the literatures of Srila Rupa Goswami Prabhupada. और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, It is only for our guidance that Srila Rupa Goswami prepared his book Bhakti Rasamrita Sindhu. हमारे गाइडेंस के लिए कैसे भक्ति करना है। तो हमने देखा कि जो शास्त्र विधि को छोड़ के भक्ति करता है तो क्या कहा गया? वर्तते कामकार्थ न सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परामति। ना तो सिद्धि मिलता है, ना तो सुख मिलता है, ना तो परम गति प्राप्त होता है। 16 अध्याय का 23वां श्लोक है भगवद गीता। तो भक्ति हमें शास्त्रों का पालन करते हुए, आचार्यों का चरणों का अनुमन करते हुए उसको भक्ति का पालन करना है, which is now presented in the form of nectar of devotion. तो प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का अनुवाद किए नेक्टर ऑफ डिवोशन। भक्ति यानी डिवोशन और रस अमृत नेक्टर सिंधु। तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा लिबर्टी लिया है बिकॉज दिस नॉट एग्जैक्ट श्लोका टू श्लोका ट्रांसलेशन, इट इज समरी स्टडी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद ने एग्जैक्टली भक्ति रसामृत सिंधु इसका नाम नहीं दिया, क्योंकि एज इट इज एग्जैक्टली हर एक श्लोक में डिस्कस किया गया है, इसमें समरी में डिस्कस किया गया है। Persons engaged in Krishna conscious movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मिल्क तो बहुत लाया है, अभी मिल्क को बॉईल करने का समय है। You should also boil the milk, है ना। तो हम भक्ति में नए आए, हमने चैंटिंग चालू किया है, हम भक्ति के कुछ नियमों का पालन कर रहे हो, ठीक है, परंतु अभी गंभीरता से भक्ति कैसे करना है, भक्ति के सारे अंगों का पालन कैसे करना है, उन भक्ति का अंगों का पालन करते हुए एक भक्त का मनोभाव क्या रहना चाहिए, ये सारा हमें जानना है। कितना डिटेल्स है हर एक चीज में, है ना। तो इसीलिए हमें ये ग्रंथ का बहुत ही गहराई से अभ्यास, वारंवार इसका अभ्यास करना है। तो आगे देखेंगे भक्ति मींस डिवोशनल सर्विस। कंपाउंड वर्ड यूज करते श्रील प्रभुपाद जी, डिवोशनल सर्विस। सिर्फ डिवोशन नहीं यूज करते। तो इससे पहले कितने लोगों ने भक्ति को अनुवाद किया, तो सब लोग क्या कहते हैं, भक्ति यानी क्या है, डिवोशन। परंतु डिवोशन से क्लैरिफाई नहीं होता एग्जैक्टली क्या है डिवोशन। तो डिवोशन यानी प्रेम एक प्रकार से, और प्रेम का मतलब है सेवा। लव मींस टू सर्व, लविंग सर्विस इज कॉल्ड एज भक्ति। तो भक्ति में और कर्म में अंतर क्या है, कौन कहेगा, उत्तर दे पाएगा। कर्म में और भक्ति में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड भक्ति? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म में आए प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप हाथ खड़ा कीजिए, जो भी कहना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। माधवी माता जी बताइए। कर्म अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए किया जाता है और भक्ति भगवान के तृप्ति के लिए किया जाता है। एकदम सटीक आंसर है कि जब हम आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तार वाले काम, खुद की इच्छा के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसे काम कहते हैं, परंतु कृष्ण के इंद्रियों के तृप्ति के लिए काम करते हैं। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वंचा धरे प्रेम नाम, उसे प्रेम, उसे भक्ति कहते हैं, है ना। तो गीता में भी भगवान कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो तो युद्धा युद्धस्व नैवम पापमावाप्यसि। आप ड्यूटी के लेवल पे कोई कार्य करते हो, निष्कर्म में भी कोई कार्य करते हो। निष्कर्म यानी क्या है कि भाई खुद के सेल्फिश रीजन के लिए नहीं कर रहे हैं, नो वी आर जस्ट डूइंग एज अ ड्यूटी, उसमें भी पाप नहीं लगेगा। परंतु कोई भी कार्य अपने लिए हम कुछ करते हैं तो हम कर्म से बद्ध हो जाते हैं। आप सकर्म लो या विकर्म लो, दोनों का फल भुगतना पड़ता है। ऑलरेडी बोथ। यस, रिद्धिका माता जी ने बराबर लिखा है कि कर्म में बंधन लगता है। बाउंड इन अ पाथ ऑफ कर्म, वी हैव टू बेयर द रिएक्शन ऑफ आवर कर्म। हमें उसका जो भी उसका रिएक्शन आएगा, अनुकूल प्रतिकूल जो भी रिएक्शन आएगा उसको हमें सहन करना पड़ेगा। परंतु भक्ति करते हम, उसका मतलब है भगवान का प्रेममय सेवा करते हैं, तो ये कर्म में नहीं इंक्लूड होता है। तो इसलिए गीता में कहते हैं कि हमें बहुत गहराई से जानना चाहिए कि
कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। और बुद्धिमान व्यक्ति को ये भी जानना चाहिए कि कैसे अकर्म में कर्म है और कर्म में अकर्म है। भगवान ये भी कहते हैं, गीता के 4थे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कहते हैं, one who's very intelligent, he understand how there's a karma in akarma and karma akarma in karma. What do you mean by that? उसका मतलब क्या है इस श्लोक का, पता है किसी को? कोई बता पाएगा? आपका हाथ पहले जो ऊपर तक पे नीचे कीजिए, वापस हाथ कर सकते हो। Yes. When Krishna says you should know, you should learn to see karma in akarma and akarma in karma. What does that mean? कर्मणि अकर्मयो पश्येत् अकर्मणि च कर्मयो स बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसे भगवान गीता में कहते हैं, वो बुद्धिमान मनुष्य। तो उसका मतलब क्या है? कर्म। यस, एक सेकंड। यस, स्वर्णकांति कीर्तिदा माता जी बताइए, उसके बाद में नेहा माता जी बताइए। यस, हरे कृष्णा। जब हम लोग कर्म करते हैं तो बिना किसी फल की अपेक्षा करते हुए जब कर्म करते हैं तो वो अकर्म हो जाता है। और अकर्म में कर्म मतलब जब ऐसे कर्म कर जब बिना किसी फल की अपेक्षा करते हुए जो कर्म किया जाता है, फिर उस कर्म में अकर्म हो जाता है। और अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म कैसे देखना है? तो बिना अपेक्षा मतलब बिना अपेक्षा के से जब हम लोग कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म जब करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अकर्म हो जाएगा। और अकर्म में कर्म, अकर्म में कर्म कैसे हो जाएगा? नेहा माता जी आपने किया था, उसके बाद में। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, karma to akarma is when we do our responsibilities, though it would be material responsibilities that we are performing as a grihastha, but doing it as a service and offering the fruits to Krishna is akarma. Yes, and how to see karma in akarma? Karma in akarma. Okay, Prabhuji, anything that we do without keeping any expectations? That is, Mataji, seeing akarma in karma. Yeah. But Yes. what is karma in akarma? Okay, baki Prabhuji, karma is something that you do and you have the expectation for the fruit, and for that you'll get a reaction. That is karma. ओके ओके, और थोड़ा मैं, थैंक यू माता जी। रेशमा माता जी आप बताना चाहेंगे, बताइए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, ये जो श्लोक है भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखो, मतलब कि भगवान की इच्छा से अगर कर्म करोगे तो उसका फल नहीं लगेगा। और जैसे अर्जुन डिनाई कर रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो जो मना कर रहे थे, जो कर्म करने के लिए जो उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो नहीं कर रहे थे, तो उससे उन्हें कर्म का फल लगेगा। इसलिए जो भगवान कहते हैं वो करते हैं तो वो कर्म में अकर्म हो जाता है। अगर हम नहीं करते तो फिर उसका कर्म लगता है। यस यस, ये दिस राइट आंसर। यस, तो थैंक यू। तो मतलब प्रभु जी कि भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के हमें कोई कर्म करना है। यस, तो भगवान को कृष्ण में केंद्र भाग रख के कोई कर्म करते हम तो वो अकर्म हो जाता है। परंतु कोई सोचता है कि भाई कर्म करने से कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो हिमालय में चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, फिर हमें तो कोई कर्म नहीं लगेगा। अरे आप हिमालय में भी जाओगे तो खाना तो खाना पड़ेगा, आपको तो नहाना तो पड़ेगा, आपको तो चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो आपके चलते चलते आपके पैर के नीचे कीड़े वीड़े आ जाएंगे, मर जाएंगे, तो कर्म लग जाएगा। खाते हुए आप जंतु को तो ऐसे आपके मुख में चले जा सकते हैं। So even while doing ordinary activities, actually even we don't intend to harm anybody, but still sometimes some kind of harm happens, right? So that is seeing karma and akarma. You're trying to be akarma, but you're still committing some karmas, and you're going to get reaction for that. Not just by stopping all the activities, rather stopping all the activities. Krishna says, like Mataji has said, you'll get simple reaction for not doing your duties. कोई नहीं करता तो उसको पाप लगता है, अपना कर्तव्य नहीं करने का। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कर्म में अकर्म कैसे देखना है और अकर्म में कर्म कैसे देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? तो मुझे एक बार अकर्म में कर्म समझाइए। अकर्म में कर्म,
जैसे कोई सब अपने कार्य छोड़ देता है तो कार्य छोड़ने का उसे पाप लगता है, अपना ड्यूटी छोड़ने का, और वो नहीं कुछ कर रहा है ऐसा लग रहा है तो भी उत्तम नो बिकॉज ही डूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज व्हाइल डूइंग दैट सम सिंफुल रिएक्शंस विल स्टिल कम, so that is also। बाकी सब म्यूट कीजिए प्लीज, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। जब आपको अनम्यूट कहा जाएगा ना तभी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, आ गया समझ में, आता जी? जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा, Yes. दंडवत प्रणाम प्रभु। तो इसमें क्या एक अकर्म का मतलब ट्रांसडेंटल वर्क है और एक अकर्म का मतलब निष्क्रियता है, नॉट डूइंग वर्क? यस यस यस, कर्म में अकर्म देखना है, जी यानी कर्म कर रहे हैं परंतु भगवत कर्म है वो, भगवान को सोच के सेंटर में रख के, केंद्र में रख के कर्म किए जाए तो अकर्म है वो, और बाहरी जी दृष्टिकोण से अकर्म है परंतु उसमें कोई जी भगवान केंद्र में नहीं है, इसलिए वो कर्म बन जाते हैं। तो यह जी जो व्यक्ति देख पाता है उसे बुद्धिमान कहा गया भगवान के द्वारा, सब बुद्धिमान मनुष्य। गीता में भगवान कहते हैं। जी प्रभु, तो थैंक प्रभुपाद यू। जी भक्ति को यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं डिवोशनल सर्विस। तो कई लोगों को लगता है कि अरे आप तो आध्यात्मिक जीवन कर रहे हैं, आप इतना दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं, आप भी फंड्स ला रहे हैं। हाँ? प्रभुपाद जी को लोग कहते थे वृंदावन से सन्यासी दिल्ली क्यों जाते रहता है, कोई वृंदावन में रहता तो वृंदावन छोड़ के नहीं जाता है, प्रभुपाद जी तो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? अरे भाई प्रभुपाद जी खुद के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, प्रभुपाद जी दिल्ली जा रहे हैं यहाँ पे कृष्ण का पुस्तक छापने के लिए, कृष्ण का पुस्तक बांटने के लिए। तो डिवोटीज भी कभी प्रॉफिट लॉस का बात करते, क्यों? बट वो प्रॉफिट खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए। रिसेंटली हम लोग कुछ ग्रीटिंग कार्ड बना रहे, तो मैं एक स्टूडेंट को बोला था आप मार्केट रिसर्च कीजिए और देखिए आपकी कौन से ग्रीटिंग का कितना इंडिया में मार्केट, ये सब देखिए आप एक बार, क्योंकि हम आध्यात्मिक ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, हमें पता रहना चाहिए कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो बोले अरे आप तो आश्रम में रहते हो, आप भी ये सब बातें मार्केट का देख रहे हो। बोले ये सब मार्केट हमारे लिए नहीं है, ये कृष्ण के लिए है। हमें कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि हम गलत तरीके से करें जिससे भगवान का कुछ नुकसान हो जाए। तो भक्त भी कभी कभी इस प्रकार से उनको देखना पड़ता है, बट वो खुद के लिए नहीं, वो भगवान की सेवा के प्रत्यर्थ होता है। सो मेनी टाइम पीपल थिंक बीइंग स्पिरिचुअल मींस बीइंग इनएक्टिव, तो एक जगह पे बैठना, आंख लगा के आंख बंद करके बैठना। कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हमको ध्यान का समय सीमा कैसे बढ़ा सकते हैं, वी आर सिटिंग एंड वी जस्ट एबल टू मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स और हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अ प्रोसेस ऑफ 24 आवर्स मेडिटेशन, राइट? Even we are sleeping, we are thinking that this sleeping will give me rest so that next day whole day I will be energetic for doing service to Krishna. So that sleep is not material, that sleep is spiritual sleep, because the sleep actually is only for rejuvenation of the body, it's not extra. शरीर को सिर्फ स्फूर्ति देने के लिए है, अगले दिन और सेवा कर पाए। और पूरा दिन हम सेवा कर रहे हैं, तो कोई कुकिंग कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए है, इसलिए सब कुछ प्रैक्टिकल समाधि है, 24 आवर समाधि। तो प्रभुपाद जी ने हमें 10-15 मिनट समाधि वाला मेडिटेशन वाला नहीं, हमको 24 घंटा मेडिटेशन कैसे करना है वो प्रभुपाद जी ने सिखाया हमें। भक्तिमय जो क्रिया या भक्तिमय प्रोसेस देके प्रभुपाद जी ने सिखाया है। तो भक्ति का अर्थ यहाँ पे दिया गया डिवोशनल सर्विस, सिर्फ डिवोशन नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो सब अच्छे भाव है हमारे मन में, ये सब करने का क्या जरूरत है, माला वाला करने का क्या जरूरत है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? तो बाजू वालों को पूछो, हम कहते हैं ठीक है आपके बाजू में कोई रहेगा उसको पूछो, वो क्या कहेंगे आपके बारे में? जो भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहा है बिल्कुल, तो अच्छा कैसे कह सकते? क्योंकि भगवान हम सबके स्वामी और बिल्कुल भी उनका स्मरण नहीं करते तो हम अच्छे कैसे हो सकते? जो शुद्ध भक्त होता है, जो वास्तविक अच्छा व्यक्ति होता है, वो कृष्ण को भी भूल ही नहीं सकता है। अभी हम इतने अच्छे नहीं हुए इसलिए हम कृष्ण का स्मरण हमें नहीं होता है, हमें समझना चाहिए। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करें। Every service has attractive feature which drives servitor progressively on and on. हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम वो कार्य किए जा रहे हैं। तो कुछ नहीं मिलेगा तो कोई कार्य क्यों करेगा? Every one of us within this world is perpetually engaged in some sort of service, and the impetus for such service is a pleasure we derive from it. Driven by affection for his wife and children, a family man works day and night. A philanthropist works in the same way for the love of the greater family. And the nationalist for the cause of country and countrymen. तो बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, और उसमें क्यों काम करते हैं? क्योंकि उसमें से कुछ तो आनंद आ रहा है। एक परिवार वाले व्यक्ति सुबह निकलता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते, 5 बजे निकलते हैं, 3-4 घंटा ट्रैवलिंग करके ऑफिस में पहुंचते, फिर पूरा दिन काम करते, फिर रात को ऑफिस निकलते हैं, फिर 2-3 घंटा पहुंच के, तो ऐसा कितना कम समय खुद के लिए मिलता है, तो भी व्यक्ति इतना कष्ट करता है। क्यों?
उसमें परिवार के पालन पोषण में, उसको परिवार में उसको कुछ आनंद मिलता है। तो देखो ये सर्कल बढ़ता जाता है। कोई बालक रहता है तो सिर्फ खुद के बारे में वो चिंतित रहता है, बस सब कुछ मेरे लिए चाहिए, सब मेरे खाने के लिए, अन्नमय कोश, एवरीथिंग ओनली मेंट फॉर मी। बट कोई बाद में बड़ा होता है, उसका सर्कल बढ़ता जाता है, कोई गृहस्थ जीवन में जाता है तो अभी पत्नी बच्चों के बारे में भी सोचता है, फिर धीरे धीरे सेटल होता है तो समाज के बारे में भी सोचता है, तो उसका सर्कल बड़ा हो जाता है। परंतु सर्कल भी अभी कितना बड़ा है, वो बस एक परिवार इतना है, या परिवार से बड़ा कम्युनिटी इतना है, भाई मेरी जाति है तो मैं इस जाति के लिए कार्य करूंगा, या कोई कहेगा कि मेरे धर्म के लिए, या कोई कहेगा कि धर्म यानी सनातन धर्म नहीं, लोग फेथ्स, पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज, आइडिया लोग बोलेंगे मेरे देश के लिए मैं कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये भी एक बड़ा सर्कल है, और एक स्तर पे स्तुत्य है, एक स्तर पे स्तुत्य है, परंतु भागवत के दृष्टिकोण से ये अभी भी निम्न है। क्योंकि आप किसी को प्रेम करो, जैसे आपके परिवार को प्रेम करो, इसका मतलब आप कई लोगों को प्रेम नहीं कर रहे हो, परंतु वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम जो होता है वो is ever expanding, is meant for every living being. It's not limited to only few people. If you're loving your country, that means you're not loving some other countries. If you say I love entire humanity, मैं पूरे मानवता को मैं प्रेम करता हूँ, परंतु मानवता छोड़ के भी कितने सारे जीव जंतु हैं, कितने सारे स्पीसीज है, योनिया है, उनके लिए कोई प्रेम नहीं, उनके काट के खाओगे। उसका मतलब है कि पूर्ण प्रेम का पूर्णत्व नहीं आया अभी तक। तो इस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति कार्य करता है अपने छोटे से सर्कल के लिए, या seemingly बड़े सर्कल के लिए, but still unless one loves Krishna, his circle is not yet complete. That also we'll see come in a future paragraphs, आने वाले पैराग्राफ्स में आएगा वो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि हर एक सेवा में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है, उसके कारण व्यक्ति कार्य करते जाता है। 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, 10 मिनट लेट शुरू किए थे हम। Okay. The householder and the nationalist. Okay, the force which drives the philanthropist, the householder and the nationalist is called rasa. तो सबको कुछ तो रस प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, उसके कारण वो कार्य कर रहे हैं। और काइंड ऑफ मेलो रिलेशनशिप, उस टेस्ट इज वेरी स्वीट, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो कार्य करता जाता है। भक्ति रसा इज अ मेलो डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी रसा एंजॉयड बाय मंडेन वर्कर्स। मंडेन वर्कर्स लेबर वेरी हार्ड डे एंड नाइट in order to release certain kind of rasa which is understood as sense gratification. भोग के लिए वो दिन रात बहुत कार्य करते हैं, क्यों? उससे थोड़ा बहुत भोग मिलता है। The relish or a taste of the mundane rasa does not long endure. क्या है वो आनंद? शुरू होता है और वो खत्म हो जाता है। गीता में क्या कहा गया उसके बारे में? यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नैवति आद्यंतवन्तु कौन्तेय न तेषुरमते बुधा। गीता में कहा गया कि भाई ये जो सारा सुख है ना भौतिकवादी लोग का, ये क्या सुख है? ये स्पर्श वाला सुख है, कॉन्टैक्ट प्लेजर। प्रभुपाद जी, कॉन्टैक्ट प्लेजर, जब तक इंद्रिय का इंद्रिय वस्तु से कॉन्टैक्ट होता है, टच, उसमें उसको आनंद मिलता है। जैसे वो टच चला जाता है तो उसका भोग भी खत्म हो जाता है ना। जैसे जीवा पे रसगुल्ला गिरता है तो जब तक कॉन्टैक्ट है तब तक सुखी लगता है, जैसे कॉन्टैक्ट खत्म सारा आनंद खत्म। वो तो कॉन्टैक्ट कितना रहता है? वो क्षणिक रहता है, इज वेरी वेरी टेम्पररी। दैट्स व्हाई दिस रसा इन वन सेंस इज नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी, अशाश्वत है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृष्ण कहते हैं, उसमें रमते नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे और does not endure and therefore mundane workers are always apt to change their position of enjoyment. इसलिए बदलते रहते हैं। पेंडुलम, आप हिंदी में क्या कहते हैं? पेंडुलम को घूमता रहता है, कभी एक एक्सट्रीम में, दोलक कहते हैं, मुझे लगता है दोलक है ना, कभी दोलक एक दिशा में जाता है और फिर दूसरे दिशा में एक्सट्रीम पे ले चलाते हैं, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग। प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि व्यक्ति बहुत हार्डवर्क करता है तो उसको लगता है थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, छुट्टी करना चाहिए, थोड़ा किधर जाना चाहिए, तो किधर चला जाता है 2-4 दिन। तो जैसे 1-2 दिन हो जाता तो वापस उसको याद आता है, नहीं ऑफिस में ये काम बचा है, वो काम बचा है, वो करूंगा, इससे मिलूंगा, ये बिजनेस करूंगा। तो ये भी नहीं भोग पा रहा है, वो भी नहीं भोग पा रहा है, क्षणिक सुख उसे प्राप्त हो रहा है। और वो क्योंकि भौतिक रस है, भौतिक रस है, वो कभी भी पूर्ण सुख नहीं दे सकता है। तो हमें पोजेशन में कुछ इमोशन मिलते हैं। If you possess something, we derive certain emotions. Let's say I buy a new computer, then I feel very nice. Wow, I am so happy today. But that possession may endure for a little longer time, but the emotion won't endure for that long time. उसका मजा थोड़े थोड़े समय के बाद कम होता जाएगा। कभी कभी मजा किरकिरा हो जाए, खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। तो इसे कहा गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति पिज्जा खाता है तो पहले पिज्जा के लिए 500 रुपए देगा, और दूसरे पिज्जा के लिए इतना नहीं देगा वो 500 रुपए, उसका मजा भी कम हो गया, तो इसलिए वो दूसरा पिज्जा वो प्लेस करते 400 रुपए में। ठीक है, एक के ऊपर एक पिज्जा आप और एक लेते तो आपको बस 100 रुपए कम पड़ेगा।
because they also know that person will not pay that much as he paid in the beginning, because he's not deriving that much happiness now. फर्स्ट बाइट में जितना आनंद है, सेकंड बाइट में उससे कम है, तीसरे बाइट में और उससे कम है, और कुछ समय के बाद में खाते खाते उसको उब आ जाएगा, फिर फेंक दो, बस अभी नहीं खा सकते। ये भौतिक रस है, ये खत्म हो जाता है। The possession may endure for a little longer time, but emotion will not endure, right? And the possession will also not endure. And what to say, even the life will not endure. कितना चलो जीवन तक आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है, मुझे बहुत अच्छा जॉब लगा, पर तो कब तक ये जॉब करेंगे? मृत्यु तो आने वाला है, तो मृत्यु से भी ये समाप्त हो जाएगा। That's why ये सीमित है। Yes. The relish or taste of the mundane rasa does not long endure, and therefore mundane workers are always apt to change their position of enjoyment. A businessman is not satisfied while working the whole week, therefore wanting to change for the weekend, he goes to a place where he tries to forget his business activity. सब भूलने का प्रयास करता है। Then after the weekend is spent in forgetfulness, he again changes his position and resumes his actual business activities. वापिस आ जाता है। तो जो लोग का इस प्रकार का वैराग्य रहता है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है कभी कभी, और परंतु वैराग्य नहीं आया हृदय में, तो क्या कहेंगे, मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। पापा जी कभी एग्जाम्पल देते थे, और फिर शाम को वापस घर पे आ जाएगा, अरे क्या हुआ था, घर छोड़ के गए थे, नहीं नहीं आपका कैसे चलेगा मेरे बिना, मुझे तो संभालना पड़ेगा ना। तो व्यक्ति इस तरह से वैराग्य उसके हृदय में प्रकट नहीं हुआ है, क्षणिक श्मशान वैराग्य जैसा कुछ चीज हो गई, इसलिए उसके हृदय में कुछ वैराग्य है, परंतु वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। तो हालांकि वो मुक्ति तक भी चला जाएगा, परंतु मुक्ति तक पहुंचने के बाद भी कृष्ण के चरणों के प्रति उसका अनुराग न होने के कारण उसका पतन हो जाएगा। कौन से श्लोक में सीखा था हमने? पतन्ति अधो अनादृतैष्वद। यस, ये अरविंदाक्ष मानिनास तो अष्टभावा तो शुद्ध बुद्धया। कोई सो जाएगा कि मेरा खुद में मुक्त हो चुका हूँ, भौतिक सीमा को पार कर चुका हूँ, परंतु पतन्ति अधो, वो गिर जाएगा। क्यों? अनादृत युष्मदांग रहा है, भगवान आपके चरणों के प्रति उसका कोई अनुराग नहीं है, तो लिबरेशन के बाद भी, मुक्ति के बाद भी उसका पतन हो जाएगा। इसलिए वो टेम्पररी है, भक्त को नहीं चाहिए। तो आगे पढ़ेंगे बाबू। Material engagement means accepting particular status for some time and then changing it. The position of changing back and forth is technically known as bhogatyag, which means a position of alternate sense enjoyment and renunciation. Okay. Yes. तो बार बार चेंज करना पड़ता है, इसलिए भक्ति में हमें स्थिर रहना चाहिए। हमें बहुत भक्ति को भौतिक रस के जैसा नहीं देखना चाहिए कि हम कर्तव्य के लेवल पे करते हैं और भक्ति का आनंद कर्तव्य के लेवल पे करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति से आनंद और बढ़ता जाएगा। Right, so we should be stable in our devotional service. If we have taken some service, we should steadily do it. Not आज लिया फिर कल छोड़ दिया फिर परसों लिया। उसका मतलब है कि हम उसका एक अर्थ ये भी होता है कि अभी भी हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हमें एक्चुअली उसमें भक्ति वाला रस, of course it is not always this is the reason, ऐसा नहीं कि हर बार यही कारण रहेगा, but maybe one of the reason may be that we are not doing on a spiritual platform. That's why after some time we are feeling, oh I'm tired, I'm bored, I'm not feeling nice. Right? Why we are feeling like that? Because we are not connecting it to Krishna. And because we are not connecting it to Krishna over the period of time, even apparently devotional activities here. But because they are not connected to Krishna, that's why we feel fed up after some time. Chalo change karte hain, right? But if we are doing something on a spiritual platform, then every day on and on and on, we should be able to do it. Right? Prabhupada जी के एक शिष्य थे, वृंदावन में कुकिंग करते थे, तो जीवन भर उन्होंने वही सेवा की, बस दिन भर सुबह से उठ के रात तक कुकिंग करते थे। राइट? तो ऐसे कितने सारे डिसाइपल्स है प्रभुपाद जी के, या कितने सारे भक्त हैं कि वो एक सेवा कंटिन्यू करते हैं। What is his name? बरसाना में I forgot his name. There's a devotee used to बुहारा लगाते थे रोज। उन्होंने भजन भी गाया कि उन्होंने जीवन तक बुहारा लगाते रहे। mentioned once. So वो कहते कि रोज बुहारा लगाते थे, वहां पे झाड़ू करते थे और कहते कि महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, जो सजाएंगे चुन चुन के कलिया, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। मदन मोहन जी उनका नाम था, आई रिमेंबर नाउ। वो रोज वहां पे बुहारा लगाते थे, एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी, होल लाइफ टाइम ही वाज जस्ट डूइंग दिस सर्विस। वो अपना शरीर भी बुहारा लगाते हुए छोड़ा उन्होंने। इस सेवा का फल है। और गाते गाते बुहारा लगाते बरसाने में श्री जी के महल को अपना शरीर छोड़ा उन्होंने। तो भक्त को इतना आनंद आता है कि उसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, जब तक गुरु महाराज नहीं कहते, या व्हेन यू फील, of course we can consult at our level, we are not at a perfection of our bhakti,
Sometimes we can consult if some service is going difficult, is not as per our nature, let's say, right? But whatever service we are doing, if that's per our nature, we should also try to do it. Or what is service given to us, we should try to connect to Krishna. So we'll start feeling, experiencing spiritual happiness in doing that service. Okay, अभी ये पैराग्राफ हम कंप्लीट करेंगे और फिर आज क्लोज करेंगे, या कल कंटिन्यू करेंगे? कोई प्रश्न है किसी का? मैं उसको भी टाइम देना चाहता हूँ एक्चुअली। कोई प्रश्न है किसी का? थैंक यू प्रभु जी, एक सजेशन दे रही थी, आप रीडिंग भी आप ही करते हो, डिक्टेट भी आप करते हो, रीडिंग किसी और को दीजिए सेवा, आप कितना थक जाएंगे ऐसे, खुद ही रीडिंग करेंगे और खुद ही डिक्टेट करेंगे। We'll have, we should, yes, definitely. कोई रीडिंग कर लेगा। हाँ, तो आप डिक्टेट करोगे, नहीं तो क्या होता है, टायर्ड हो जाते हैं ना। आवाज आज बहुत अच्छे से आवाज क्लियर आ रही थी, वो डेली थोड़ा सा ये होता है प्रॉब्लम, आज बहुत क्लियर आ रही थी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कौन कह रहा था ये? गौरी माता जी। सरिता माता जी। या ओके, और कोई सवाल, किसी कोई टिप्पणी है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा था कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो ये भगवद गीता किस श्लोक में आता है प्रभु जी? This comes in a 4th chapter of Bhagavad Gita. 4th chapter. तो थोड़ा इसको इलैबोरेट करेंगे प्रभु जी, और थोड़ा सा मतलब ये एक सेंटेंस में अगर कहना हो तो कर्म में अकर्म करो और अकर्म में कर्म करो। कर्म का मतलब है कि आप जो आपके जीवन में जो भी कर्म कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप घर में कुकिंग कर रहे हो, आप घर में बुहारा लगा रहे हो, तो आप कृष्ण का घर है ये समझ के कार्य करते हो। कृष्णेर संसार करी छाड़िया न जा, कृष्ण को केंद्र में रख के संसार करते हो तो वो अकर्म हो जाता है। हालांकि दिख रहा है कि कर्म कर रहे, जो कर रही है तो हमारे जैसे कर्म ही कर रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं इसलिए अकर्म है। परंतु कोई अकर्म है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई सोच रहा है कि मैं कर्म के बंधन में फंस जाऊंगा, मायावादी सन्यासी की तरह सन्यास ले लूंगा, मैं जंगल में जाके बैठ जाऊंगा। नहीं, अपना ड्यूटी छोड़ रहा है इसलिए पाप कर रहा है। या भौतिक संसार में इस प्रकार से कोई रहता है तो उससे कोई ना कोई कर्म तो हो ही जाता है। हालांकि कोई कर्म नहीं कर रहा है तो खाते पीते उठते बैठते, पंच सुना कहा गया, पंच सुना, कुकिंग करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, sometimes the living entities they die, right? So this karma is created. तो कर्म लग रहा है ऊपर से, परंतु उसमें भी कर्म हो रहा है। 4.18 है एक्चुअली भगवद गीता में। 4.18। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? और मुझे वो जो आपने श्लोका बताया था, जो शास्त्र रेगुलेशन के हिसाब से भक्ति नहीं करते हैं उसमें सिद्धि नहीं मिलता, वो 16 पॉइंट, I think it's 16.23 I believe. 23। एकांतिका हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। ये भी है कि जो शास्त्र विधि छोड़ देता है ना, जो कोई श्रुति स्मृति पुराण आदि, शास्त्र विधि मिला ऐसा श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराण आदि, कि श्रुति स्मृति पुराण को कोई छोड़ देता है और एकांतिका हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते, एकांतिक भक्ति करता है, अपने मन से भक्ति करता है, तो उत्पाते व कल्पते, बस उत्पाद ही करते, कोई भक्ति नहीं कर रहा है। ये भी एक श्लोक आता है शास्त्रों में, प्रभुपाद जी कई बार इसको दोहराते थे। यस प्रभु, स्थिति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना। यस, पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी एक मोहारा कुछ क्या है प्रभु जी, वो मीनिंग क्या है उसका? एक मिनट, सॉरी, आपने कहा कुछ वापस दोहराएंगे प्रभु जी? वो आपने कहा था ना बुहारा या मोहारा, समथिंग लास्ट यू सेड इन बुहारा ने झाड़ू लगा, झाड़ू लगा, तो वो झाड़ू लगाते लगाते अपने शरीर छोड़े। मदन मोहन जी जो पुजारी वहां पे जो बुहारा लगाते थे बरसाना में, तो मैं कह रहा था कि जीवन भर की सेवा करते रहे, क्योंकि उसमें भक्ति रस वो प्राप्त कर रहे थे, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी क्या वो भजन भेज सकते हैं आप? भजन कहाँ पे हो भजन, मुझे पता नहीं। बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मुझे भगवान को जब भोग लगाते हैं कौन सा मंत्र बोलते हैं? तो क्या कौन सा मंत्र बोलते हैं? आपको ग्रुप में भेज देंगे। तो जो मंत्र जो है ना भगवान को भोग लगाते हैं, भोग के समय में कोई डिवोटी को रिक्वेस्ट करो, ग्रुप में भेज दें, ठीक है? या ये मैं भी कभी कभी गाता था, हम जो बैकअप करते थे डीटीज का। आई लाइक दैट सॉन्ग सो समटाइम्स आई यूज्ड टू चैंट दैट व्हाइल डूइंग द क्लीनिंग सर्विस इन आवर डेटी बैकअप एरिया।
और बीच में दर्शन चालू रहता तो आप भी आते जाते निहारा करेंगे, आप भगवान को निहार सकते हो और सेवा कर सकते हो. So we should do service with consciousness actually, right? So that service done with proper consciousness. Can you sing the first one sentence? So maybe we can try on the Google if we can get it. वही है, महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे. महल बुहारा करेंगे राधिका का और आते जाते राधा कृष्ण के युगल रूप को देखेंगे, दर्शन करेंगे. We got it on the जाएंगे चुन चुन के कलिया, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे. Okay. सेजो सजाएंगे. In the temple also they decorate the beautiful divine bed of Radha Krishna and God Nitya and Jagannath also with beautiful petals, sweet fragrant petals of rose. सेजो सजाएंगे चुन चुन के कलिया, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे. Okay, thank you very much. अच्छा, सरिता माता जी का हाथ ऊपर है. Just last माता जी. हाँ प्रभु जी, जैसे कर्मा में अकर्मा का एक एग्जांपल ये भी है ना, जैसे हम भोग लगा रहे हैं लेकिन हमारा भाव नहीं है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी समझ करके, और भाव तो महीने में एक बार आता है, लेकिन 29 डेज तो हम ड्यूटी समझ के कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं. भाव कभी कभी आता है लेकिन हम चैंटिंग करनी है. ये सब कर्मा में अकर्मा हुआ ना, कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ये कोई डिमांड नहीं है इसकी, तो ये कर्मा का आपका उद्देश्य भाव प्रकट करना. क्योंकि आपका उद्देश्य भाव प्रकट करना है, तो इसलिए वो अकर्म हो जाता है ना. तो हमें भाव नहीं है तो भाव के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें भाव है ना. ओके, वैभव ब्रो, लास्ट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. यस प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब कर्म के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, कि जो टाइप्स होते हैं, मतलब संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म या क्रियामान कर्म, तो ये कर्म और अकर्म के साथ किस तरह से रिलेटेड है? वो कर्म का ही भाग है. कर्म यानी उसको कोई रिएक्शन नहीं आती. सारे रिएक्शन वाले देने वाले कर्म इसमें आता है. प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, जिसका आपको रिएक्शन मिलने वाला है फ्यूचर में, है ना, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं. संचित कर्म. तो प्रभु जी क्रियामान कर्म में ये दोनों नहीं आते क्या, कर्म और अकर्म? ये ना अब आएगा, कुछ सेशंस के बाद में डिटेल में आएगा, हम पढ़ेंगे. बट ये कर्म में आता है, बेसिकली कर्म में आता है. कर्मों का फल मिलने वाला है, उनको कहा गया है प्रारब्ध कर्म. कर्म नहीं है. ठीक है, ओके. तो क्लोज करते हैं, अभी थोड़ा लेट हो गया ना, कल करते क्लास क्वेश्चन. ये ठीक है. क्योंकि आपने कहा कि अकर्मा के लिए रिएक्शन नहीं लगेगा, लेकिन कृष्णा भगवत गीता के 2.40 में एक श्लोका बोलते हैं कि नेहा विक्रम नाटकी प्रत्यावायन विद्यते. जो मानव पहले जन्म में भक्ति कर चुका है, उसको नेक्स्ट जन्म में उस टाइप की लेवल की भक्ति मिलती है, तो भक्ति का भी फल मिल रहा ही है ना. तो ये फल का मतलब है कि उसे अगले जीवन में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं माता जी. भक्ति का उसको भुगतना नहीं पड़ता है, मुक्त हो रहा है धीरे धीरे. उससे आगे भक्ति बढ़ता जाएगा, पूर्ण तरह से मुक्त हो. उसको शरीर लेना पड़ रहा है भक्ति के फल की वजह से नहीं, उसके बाकी कर्म बचे हुए उसका फल लेने के लिए उसको शरीर लेना पड़ रहा है अगला. समझ रहे हैं माता जी? उसका भक्ति कंटिन्यू हो रहा है अभी. इफ आई एम गेटिंग बॉडी, इट्स नॉट रिजल्ट ऑफ माय भक्ति, इट इज रिजल्ट ऑफ माय अदर अनफिनिश्ड कर्मास. ओके, थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी, रिलेटेड टू दिस एकदम क्वेश्चन आया मन में कि हमारा जो कर्मास बाकी है वो कंप्लीट करने के बाद हम जन्म देते हैं फिर से, राइट? और अभी पितरों का कोई एक लेक्चर सुना, तो उसमें ये बोला है कि आपको ये जो मनुष्य मिलता है आपके पितरों की कृपा से मिलता है. सो सम कंफ्यूजन, और इट इज रिलेटेड. कृपा है, मनुष्य जन्म मिला है, परंतु तो भी जन्म तो मिला है ना. तो जन्म यानी कर्मों का ही फल है. वो आपको बहुत ही कृपा रहती थी, आपको जन्म ही नहीं मिलता था, आप तो भगवत धाम चले जाते थे, है ना. तो रिलेटिवली कृपा है, बाकी योनि नहीं, मनुष्य जन्म मिला है, परंतु तो भी हमें कर्मों का कुछ फल बचा हुआ है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है. हाँ, तो वो भुगतना पड़ेगा. भी वो जन्म मिला है तो फिर वी हैव टू आल्सो सफर unless we are sent here from the spiritual world by Krishna. We are all taking birth here because of our previous unfinished actions. Some reactions are due to all our previous actions. हमारा अभी रिएक्शन पूरा मिला नहीं है, इसलिए मनुष्य जन्म लेना पड़ रहा है. तो डायरेक्ट भगवत धाम चले जाते थे.
पूर्ण कृपा होता था, मीन्स if you're that qualified then would have gone back to God. But okay. Yes, Guruji. Thank you so much. Thank you. We'll close now. Actually मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा डेली क्लास है तो धीरे धीरे होता रहेगा ऐसा कवर, है ना. Thank you. Please share. Okay. Thank you. Let's chant 3 times Hare Krishna mantra, then we close. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. We'll continue tomorrow again. रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हो. होस्ट कौन है? ठीक है.